হয়েছে। তাই আপনারা আমাকে একটু চা দিলেন, আমি একটু চা খেলাম, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমার খুব প্রিয় গৌতম দেব, আমার খুব প্রিয় বিনয় তামাং, ওটা জনমুক্তি মোর্চা নেতা, আমাদের প্রার্থী অমর সিং রায়জি, রানা শ্রীরামপুর, আমাদের সমস্ত জেলা পরিষদের মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম সভা যারা আছেন, কাউন্সিলরও আছেন, কৃষ্ণ থেকে শুরু রানা থেকে শুরু করে সকলে, আমার এখানে উপস্থিত আমার পাহাড়িয়া ভাই বোনেরা, আমার সাধারণ মা ভাই বোনেরা, আমার চা বাগানের মজদুর শ্রমিকরা, আমার তপশিলি এবং আদিবাসী ভাই বোনেরা, এবং আমি অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি এপাশ থেকে ওপাশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন প্রচুর ভাই বোনেরা আমার দাঁড়িয়ে আছেন, মা ভাই বোনেরা, আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, সালাম, নমস্তে, জয় জওহর। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মাটিগাড়ার ফাঁসি দেওয়া জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। এই জায়গাটা দেখতে এত সুন্দর। আপনারা বাংলা বোঝেন কি? सब বোঝেন আর হিন্দিও বোঝেন। चाय बगान का मजदूर लोग ज्यादा हिंदी समझते हैं, তাই তো? দুটো মিলিয়ে। আর পাহাড়ি ভাই বোনেরা সবাই হাড়ু বস্তু মানুষ প্রত্যেকের ভাষা বোঝে। ভালো থাকবেন সকলে। গৌতম দেব আপনাদের কাছে অনেকটাই বলেছেন, বিনয় তামাং বলেছেন। এই সিটটা কিন্তু আমাদের গর্বের সিট। এই সিটটার নাম কি? দার্জিলিং, তাই তো? এখানকার লোকসভা সিটের নাম কি? দার্জিলিং লোকসভা সিট। মাটিগাড়া ফাঁসি দেওয়া, শিলিগুড়ি চোপড়া, কার্শিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং মিরিক, এগুলো দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে। বুঝতে পারছেন? অ্যাসেম্বলি আলাদা, ওটা বিধানসভা। মাটিগাড়া, ফাঁসি দেওয়া এগুলো আলাদা, শিলিগুড়ি আলাদা আলাদা অ্যাসেম্বলি আছে। কালিম্পং, কার্শিয়াং, দার্জিলিং, চোপড়া। কিন্তু যখন লোকসভা ইলেকশন হয়, দিল্লির ইলেকশন হয়, তখন কিন্তু এই সিটটা দার্জিলিং সিটের মধ্যে পড়ে। আমরা দার্জিলিং সিটকে ভালোবাসি কি বাসি না? দার্জিলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম শুনেছেন? দার্জিলিং এর চা বাগানের নাম কমলা লেবু সবাই শুনেছি আমরা। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, মাটিগড়া, চোপড়া, ফাঁসি দেওয়া, নকশালবাড়ি, আমার ওদিকে কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক, দার্জিলিং, সবই হচ্ছে দার্জিলিং সিটের মধ্যে পড়ে। এবার আমরা বাইরের লোক নয়, একজন भूमिपुत्र, जो एक भूमिपुत्र है, जो दार्जिलिंग का रहने वाला है, उनको ही हम लोगों ने टिकट दिया है। उन्होंने हमारा दोस्त जो पार्टी है विनय तामांग को, जनमुक्ति मोर्चा पार्टी का एमएलए था दार्जिलिंग का, उन्होंने हम तृणमूल कांग्रेस और जनमुक्ति मोर्चा एक साथ में लड़ेंगे, इसी के लिए उन्होंने रिजाइन किया एमएलए से। और हमारा उम्मीदवार हो गया है तृणमूल कांग्रेस का जोराफुल का, जनमुक्ति मोर्चा का सपोर्ट में। मैं इसी के लिए हम जो आपका जनमुक्ति मोर्चा हुई है उसका हम आभारी हूं। हम लोग एक साथ में काम करने चाहते हैं, इसी के लिए हम दंगा नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम खून नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम विवाद नहीं चाहते। আমি ঝগড়া চাই না, আমরা বিবাদ চাই না। আমরা ফাঁসি দেওয়া, খড়িবাড়ি, বিধাননগর, নকশালবাড়ি, চোপড়া, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক,
শিলিগুড়ি আমরা झगड़ा चाही ना, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, हम रास्ता चाहते हैं, हम चाय बागान खुलना चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, अच्छा से रहना चाहते हैं। छात्र जनगण एগিয়ে যাক, আমার जो नया वोटर है, जो नया वोट देंगे उसके लिए हमारा बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक साथ में काम करने के लिए একটা মনে রাখা উচিত, একসাথে কাজ করতে গেলে মনে রাখবেন। চলে এসো গৌতম দেব এসো, বিনয় আশি নমন সিংজি। এই যে দেখছেন আমরা সবাই একসাথে, এই যে একসাথে দেখুন পাহাড় সমুদ্র একসাথে, सबसे ज्यादा अच्छा। अच्छा और कायदे साथी चले एसो, कायदे चले एसो, आ जाओ। और अच्छा हमारा हाँ छोटन किसको हमारे कायदे लीडर भी है, एमएलए भी थे। तो ऐसा देखो हम सब एक साथ में हैं, एक कट्टा है। एक चाय बागान का मजदूर भी आ जाओ, चाय बागान का मजदूर को ले आओ, एक मजदूर भी आ जाओ चाय बागान को, जो आप लोग चाय बागान में काम करते हैं, जो हमारा चाय बागान में काम करते हैं, वैसा चाहते हैं। आज आओ, चाय बागान का मजदूर जो होता है वो हमारा दिल का धड़कन होता है, हम उसको दिल से प्यार करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो इसी के लिए हमारा कोई शुभ काम हो और वो नहीं रहेगा, ये हमारा अच्छा नहीं लगेगा। आइए पुष्पा खालको लता जो है हमारे चाय बागान का श्रमिक भी है। चलो एक साथ में हम लोग एक साथ में लता, चलो बिना को भी हमने देखो बंगाली पहाड़ी ट्राइबल चाय बागान का मजदूर सब एक साथ में है कि नहीं? सब एक साथ में है, कोई फर्क हमारा ऊपर में नहीं है। आप एक माइनॉरिटीज भी चाहते हैं, एक मुस्लिम भाई आ जाओ, उधर ऐसे चले सो, हाँ चलो उधर उधर चले তোমাদের পাশে একদিন মহিলা চলে আসুক। এই যে নবীন বিমান মহাদার খুন হয়েছিল তাদের পরিবার, তাদের আত্মীয় ছিল যাদের মারা গিয়েছিল, সুতরাং সবাই মিলে দেখুন सब परिवार और कास्ट और क्लीन पार से संबंध लेकर यही होता है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा हिंदुस्तान का परंपरा है, यही हमारा बंगाल का परंपरा है। और क्या और बहुत मेहरबानी है। কেন আমি কেন অমর সিং রায়জিকে টিকিট দিয়েছি? অমর সিং রায়জিকে আমার পছন্দ হয়েছিল সেদিন, ওনাকে আমি বলেছিলাম পাহাড়ের উন্নতি করতে হবে, আপনি আমাকে একটা স্কিম বানিয়ে দিন, একটা পরিকল্পনা বানিয়ে দিন। বিশ্বাস করুন যে কাজটা করতে 6 বছর থেকে 8 বছর টাইম লাগার কথা, সেই কাজটা উনি আমাকে 3 মাসের মধ্যে করে দিয়েছে। এবং আমি এত খুশি হয়েছি যে এইরকম কাজের লোক আমাদের চাই। क्या हमका काम का आदमी चाहिए? काम का आदमी चाहिए ना दिल्ली में भागने वाला नेता चाहिए? क्या चाहिए? दिल्ली का लड्डू हमारा नहीं चाहिए, हमको चाहिए जमीन में रहने वाला एक नेता जो आपको सुख दुख में साथ है, जो एक साथ में काम करे। हमको बंगाल में पहाड़ का साथ और हमारा जो समुद्र है माटीगढ़ा, काशीगढ़ा, विराटनगर, खरीबाड़ी, शिलीगुड़ी, चोपड़ा, हम नहीं चाहते कोई पड़ा को एक साथ में रहना, तो एक साथ में अच्छा से काम आता है। और एक साथ में अगर नहीं रहेंगे, अगर पहाड़ का साथ समुद्र में झगड़ा हो जाए क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है। पहाड़ का बिजनेस अगर अच्छा होता है, अगर शिलीगुड़ी, काशीगढ़ा, माटीगढ़ा, विराटनगर, खरीबाड़ी सब अच्छा रहते हैं। और सिलीगुड़ी का भी आपको जो समुद्र एरिया है इसको बिजनेस भी अच्छा रहता है। अगर
तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, আমি আপনাদের বারবার করে বলবো, মাটিগাড়ায় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জিতেছে, আমরা জিতিনি। ফাঁসি দেওয়া নির্বাচনে বিধানসভায় কংগ্রেস জিতেছে, আমরা জিতিনি, আমরাই জিতা। कांग्रेस जिला फांसी देवा में, कांग्रेस जिला माटीगाड़ा में, सीपीएम जीता सिलीगुड़ी में, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं जीता, इसी के लिए आपको काम हम नहीं करेंगे। हम जीता नहीं, लेकिन तब भी आप लोगों को काम हमने किया है। आपको चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हिंदी कॉलेज हो, चाहे जो भी कर्मक्षेत्र हो, चाहे किसान मंडी हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे रास्ता हो, चाहे बगान हो, हर चीज के लिए हम काम इसी के लिए किया है कि आम जनता हमारा पास सबसे कीमती चीज है। आप अपना में सबसे बेশি ভালোবাসেন। আমি আবার বলি, এবারে নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। एक दफे चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 साल में आप देखा कि नरेंद्र मोदी जी का पार्टी और मोदी जी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कैसे देश को लूट किया है। नोटबंदी से लेकर, चाय बागान से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, पहाड़ से लेकर, सिलीगुड़ी से लेकर पूरा लूट किया है। আপনাদের মনে আছে আগের বারে কি বলেছিল? वोट नहीं दीजिए, हम 7 चाय बागान खुलवाएंगे। एक भी नहीं लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट लेने के लिए वादा किया था, वोट लिया था, बीजेपी मगरियाट में जीता था, उसका बाद में कुछ नहीं वोट किया है। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में क्या बोला था? पहाड़वासियों मेरे को वोट दे दो, मैं आपको गोरखालैंड कर देंगे, हम दोनों को बांट देंगे। वोट लेके चला गया, जीता। इसका बाद कोई पता नहीं है, दार्जिलिंग को देखा भी नहीं, कोई सोचा भी नहीं। ये लोग इतना मेहनत किया एक सेक्टर यूनिवर्सिटी के लिए, दार्जिलिंग में हमको एक यूनिवर्सिटी दे दो, नहीं दिया। तो ये लोग भीख मांगते रहे, भीख मांगते रहे। हम मुझे बोलना आप भीख मत मांगो, हम गरीब है जरूर, लेकिन थोड़ा से देने का मौका हमारा गवर्नमेंट का है। हम यूनिवर्सिटी दिया पहाड़ में, तो ही यूनिवर्सिटी हम लोगों ने कर दिया। আপনারা জানেন শিলিগুড়িতে সাফারি পার্ক, নতুন করে চিড়িয়াখানা, সাফারি পার্ক কত সুন্দর হয়েছে। শিলিগুড়িতে আমরা শিলিগুড়ির পাশে জলপাইগুড়িতে নতুন সার্কিট বেঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন রাজনীতিবার শিলিগুড়ির পাশে একেবারে ভোরের আলো কত সুন্দর প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন এখানে নতুন তিস্তা নগরী হচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের যে এয়ারপোর্ট ছিল দার্জিলিং এর বাগডোগরা, নাইট ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিস দেওয়ার জন্য জমি থেকে শুরু করে সব বন্দোবস্ত আমরা করে দিয়েছি। কত ট্রেন এখানে করে দিয়েছি আগে, তখন আমি রেল মিনিস্টার ছিলাম। একটার পর একটা কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে শুরু করে, একেবারে শতাব্দী ট্রেন থেকে শুরু করে, জলপাইগুড়ি থেকে শুরু করে, ময়নাগুড়ি ঝকিগোপা থেকে শুরু করে, চাংরাবান্ধা মালবাজার থেকে শুরু করে কত ট্রেন করে দিয়েছিলাম। আজও দেখুন আজকে আপনাদের এই রাস্তার সাথে নেপাল কানেক্টেড হচ্ছে, ভুটান কানেক্টেড হচ্ছে, বাংলাদেশ কানেক্টেড হচ্ছে। এই কাজটা আমরা করছি জানেন, আপনি বাই রোডে बांग्लादेश चले जेते पारबेन, आप भूटान जा सकते हैं, आप नेपाल जा सकते हैं बाई रोड में। ये सब काम हम लोगों ने कर दिया। जो काम अभी चल रहा है सिलीगुड़ी, आप देखो चारिदिक में देखो नया रास्ता, नया फ्लाईओवर, सब कुछ हो रहा है। माटीगाड़ा जो रास्ता में आप आते हैं, मैं कभी कभी बोलता हूँ कहते कि बोलता अगर मेरे को भर्ती होता ना, मेरे को मौका होता तो माटीगाड़ा फांसी देवा कॉरिडोर पानी में एक घर करके रह जाता। इतना अच्छा जाएगा है, इतना अच्छा रहने का जाएगा है। मैं तो कितना बोला कि देखो 3-4 दिन के चलो हमें एक छोटा सा भी कुटी बना ली कि जब भी मर्जी होगा हम इधर ले चलाएंगे। मेरे को इतना अच्छा लगता है। आपका चाय बागान जितना अच्छा है, आपका रास्ता जितना अच्छा है, आपका बच्चा लोग जितना अच्छा है, इधर का नौजवान जैसा प्यार है और आप लोगों को दिल भी बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे रहे,
जवान हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। क्या नहीं हुआ हमारे घर में? नरेंद्र मोदी जी आके कहते हैं बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। हम बोला तुम्हारा दिल्ली में क्या हुआ? पहले बताओ, बंगाल का इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली का इलेक्शन है। आप लोगों के खिलाफ में वोट देने का इलेक्शन है। आप मेरे को पहले बताओ, अब 5 साल रहा, क्या गया? कुछ दिया श्रीमती को, कुछ दिया मटिवाड़ा को, कुछ दिया फसलों को। हमको कावाखाली में उस दिन मीटिंग के लिए आपको परमिशन कर दिया था, एसडीए थे। कावाखाली का जमीन की स्कीम का हमने जबरदस्त दखल हो गया था। मैंने वो भी, हमने वो भी बहुत से वापस कर दिया। क्या दिया आप लोगों ने? एक भी चाय बागान खुला है, एक भी चाय बागान का मजदूर के लिए कोई काम किया है? 2 करोड़ बेरोजगार हो गया है। जो कहते थे नरेंद्र मोदी का अमल में 17-18 में, 1 साल में उजाला देता है, 2 दिन के लिए एक स्टोव देता है, उसके बाद गैस खरीदना पड़ता है। वो गैस कैसे खरीदेगा? पैसा कहां से मिलेगा? हम तो 2 ऑफिस के लिए चावल देते हैं। हम तो चाय बागान में 47 पैसा में 35 के जी चावल देते हैं। हम बंद कारखाना में जो चाय बागान बंद पड़ा है, हम 1,500 टंका करके महीने में देते हैं। उसको एजुकेशन देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसको पीने का पानी देते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए सब चीज देते हैं। आप क्या देते हैं? हमारे कन्याश्री আছে স্কলারশিপ, ছাত্র খুব মেয়ে আমার কন্যাশ্রী আমি গর্বিত। ক্লাস 8 থেকে 8, 9, 10, 11, 12 কলেজে পড়লেও কন্যাশ্রী পাবে। বাবা মাকে চিন্তা করতে হবে না মেয়েদের নিয়ে। ইউনিভার্সিটিতেও পাবে, এমএ পড়বে, বিএসসি পড়বে, এমএসসি পড়বে, হায়ার এডুকেশনও করে দিয়েছি। আর্টস পড়লে 2,000 পাবে স্কলারশিপ, साइंस बोले 2,500 টাকা पाओ स्कॉलरशिप। हमारा कन्याश्री क्या है? 18 साल होने से, 18 साल होने से उसको 25,000 मिलेगा। फिर किसी को शादी नहीं होना है गरीब है, 25,000 फिर उसको रुपया देते हैं शादी में। उसको रूपोश्री स्कीम है, आपको जान पहचान लेना चाहिए। हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं लगता है। मोदी बाबू झूठ कहते हैं, चौकीदार झूठा है। हम असली चौकीदार को सम्मान करते हैं, लेकिन झूठा चौकीदार को नहीं। पूछिए, चुनाव का पहले जब कोई और नहीं है तो कहते हम आयुष्मान करेगा। क्या आयुष्मान? पहले खुद को आप आयुष्मान बनाओ, उससे बात करोगे। उन्होंने पब्लिसिटी करेंगे और 24% रुपया हमको देना पड़ेगा। वो भी कभी लोगों को नहीं मिलेगा, चुनाव में मिलेगा, उसका बाद चला जाएगा। मैं बोला तुम्हारा भीख नहीं चाहिए। हम 7.5 करोड़ आदमी के लिए वो शास्त्र शक्ति बना गया, जो आप लोगों को घर घर में मिलेगा, जो आप लोगों ने 5 लाख रुपया करके आपका परिवार के ट्रीटमेंट के लिए भी आपको मिलेगा। जो शास्त्र साथी स्कीम है, इसको भी आप लोग रजिस्टर करके लीजिए। अरे कार्ड किसको मिलेगा? मां बनने पावे। स्मार्ट कार्ड फॉर स्वास्थ्य साथी किसको मिलेगा? घर का मां को मिलेगा, बहन को मिलेगा। इसी के लिए मां बहन को दिया है, खाली उनका परिवार के लिए नहीं। अगर उसको भी माता जी रहेगा, पिताजी आएगा, तो उसको भी ट्रीटमेंट का खर्चा 5 लाख से होगा। इसी के लिए महिलाओं को भी इसका स्मार्ट कार्ड हम दे रहा है। हमारे घर में अगर 9 करोड़ 9.5 करोड़ जनता है तो 8.5 करोड़ आदमी को 2 रुपया के जी चावल मिलता है। मैं अभी असम से आ रहा हूं, मैं घूमी गया, मैंने पूछा क्या 2 रुपया के जी चावल आपको मिलता है? कहते नहीं मिलता है। हमने पूछा क्या बिना पैसा में आपको चिकित्सा मिलता है? ट्रीटमेंट अपने गए बिना पैसे? बोले नहीं मिलता है। हमको असम से कुछ भी आते हैं, ट्रीटमेंट करा के चला जाता है। हम तो अलीपुरद्वार से आते हैं, कुछ बिहार से, असम से, हम ट्रीटमेंट करके जाता है। तो सोचिए, हमारे घर में बच्चा जन्म नहीं लेता है तो इसके लिए हम एक सबूत चीज की है, हम उसे अच्छा से पेट देते हैं। स्कूल नहीं जाते तो मिड डे मील मिलता है, बच्चा लोगों को जूता मिलता है, पढ़ने का कपड़ा मिलता है,
में पढ़ने जाता है तो 20 लाख रुपया मिलते हैं। अब सिविल के लिए बहुत सारे काम कर दिया है। पहले तो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जूता चला जाता था, लेकिन आज देखिए हम सबको सर्टिफिकेट टाइम में कर देते हैं। फिर भी हमारा दिमाग में एक चीज आया कि 50 साल पहले का सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम इसको सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक कानून ठीक नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका, अभी भी कह रहा हूं कि इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। 50 साल पहले का कोई जन्म सर्टिफिकेट बहुत सारे आदमी के पास नहीं है, इसको जरूरत पड़ते चेंज करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला, माइनॉरिटीज को नहीं देखिए, हम ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर 97% माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन में डाल दिया। किसी के लिए जनरल कास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसको पढ़ने के लिए हम 1000 करोड़ का अलग से फंड रखा। हम हमारा जनरल कास्ट में उसको फंड हम नहीं दिया, उसको अलग से दिया। कन्याश्री कितना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? एक्स प्राइम मिनिस्टर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितना रुपया दिया? एक साल में 100 करोड़। हमारे देश में जनता कितना है? 100 करोड़ 30 लाख। तो एक पैसा भी देने से नहीं होता, एक पैसा भी नहीं देता। और हमारा कन्याश्री खाली स्टेट में हम 7000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। इसी के लिए हमारा माँ बहन आगे बढ़ते हैं। हम यूनाइटेड नेशन का 1 नंबर प्राइज जीता। हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में ट्रेनिंग देते हैं। अभी भी देखिए हम फ्री में साइकिल देते हैं। 1 करोड़ छात्रों मैं छात्री को हम साइकिल दिया है, 1 करोड़। हम देखे 9, 10, 11, 12 में एक साइकिल मिल जाए तो उसको 4 साल चला जाएगा। एवरी 9 ईयर, एवरी क्लास में आएगी। कितना है हमारा प्रोग्राम। चाहे खाद्य साथी हो, चाहे स्वास्थ्य साथी हो, कोई बच्चा को अगर हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है हम भी उसको फ्री ट्रीटमेंट करा देता है। कोई बच्चा मां मर गया, माए का मिल्क दूध भी खाने का लिए मौका नहीं है, उसको लिए भी एक मिल्क बैंक हमने बना दिया पीजी हॉस्पिटल में। मोदी उसने हो क्या नहीं किया, हर चीज में काम किया। चाहे हॉस्पिटल में आप देखो, आपका इधर में कोई आईसीसी था, कोई एसडीयू था, कोई एसएमसीयू था, कोई एसएनएसयू था, हमने कर दिया। 7.5 साल में हम 300 आईटीआई पॉलिटेक्निक बना दिया, जिसमें उत्कर्ष बांग्ला से 12 लाख बेरोजगार यूथ को हम ट्रेनिंग देते हैं। भाई और बहन को उसको हम नौकरी भी करा देता है। जब हिंदुस्तान में 45 साल हाईएस्ट बेरोजगारी हो गया नरेंद्र मोदी जी का टाइम में, तो हमारा स्टेट एक ही स्टेट है जिसमें हम 40% बेरोजगारी कम भी कर दिया है। আমরা কমিয়ে দিয়েছি 40%। এটা আমরা গর্ববোধ করি। বাংলায় 70 বছরে মাত্র 12টা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, আর আমাদের 7.5 বছরে 38টা বিশ্ববিদ্যালয়, 28টা হয়ে গেছে এবং আরো 10টা হচ্ছে। কোথায় হয়নি বলুন তো? রায়গঞ্জেও করা হয়েছে, মানুষ দিনাজপুরেও করা হচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে নতুন জেলা করা হয়েছে, কালিম্পং নয়া ডিস্ট্রিক্ট বানা। আপনারা দেখুন শিলিগুড়ি যে নয়া পুলিশ कमिश्नर हुआ, क्या नहीं हुआ? नया पुलिस स्टेशन हुआ, पूरा आपका इधर में हिंदी कॉलेज भी बना, एमडी कॉलेज হয়েছে, পলিটেকনিক হয়েছে, কিষাণ বাজার হয়েছে, কর্মতীর্থ হয়েছে, आईसीयू হয়েছে। क्या नहीं हुआ? आज चाय बागान का मजदूर के लिए हमने पहले 700 रुपये उसको मिलते थे, ऐसा कुछ अभी 176 रुपया हो गया है। अगर किसी को नहीं मिला तो उसको मालिक को पकड़ना चाहिए कि बहुत सारे प्राइवेट चाय बागान है, लेकिन हम लोग को ओएज जो हमारा ओएज बोर्ड बना दिया, ओएज सिस्टम, ओएज मैकेनिज्म जो हम ओएज बनाने के लिए कमेटी बना दिया, इधर में टी डायरेक्टरेट बना दिया, चाय बागान के लिए 100 करोड़ रुपया का एक फंड बना दिया। ऐसे हम चाहते हैं जब तक नहीं मिले हो तब तक हमारे 176 रुपया करके जो ओएज हमने 7.5 साल में बढ़ा दिया, डबल। कितना पहले था 67 रुपया, अभी 176 रुपया कर दिया। और भी हम करेंगे।
हम चाहते हैं चाय बागान के लोगों को लिए उसको रहने का जगह मिले, उसको भविष्य के लिए, भविष्य बंदोबस्त के लिए, उसको लिए काम करने के लिए हम एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाया, उस पर हम काम करेंगे। मैं इसी के लिए आप लोगों को कहना चाहूंगी, चाहे मेरे को ट्राइबल भाई बहन हो, अभी देखिए हमारा दोनों जो हमारा कल्चरल आर्टिस्ट है, कोई धमसा बजाते हैं, कोई मजल बजाते हैं, कोई भवाई गाते हैं, कोई भाटियाली करते हैं, कोई रविंद्र संगीत गाते हैं, कोई नजरुल गीति गाते हैं, कोई कीर्तन गाते हैं। সবাই के लिए 2 লক্ষ মনে রাখবেন আমার কালচারাল আর্টিস্ট আছে যাদের আমি মাসে টাকা দিই। কৃষকদের সব খাজনা মুকুব, কৃষি জমির খাজনা মুকুব কি করেছে কি করেনি, কৃষি জমির খাজনা মুকুব হয়েছে কি হয়নি, কৃষকরা যারা আছেন জেনে রাখুন সব কৃষি জমির খাজনা মুকুব। কৃষি জমি বিক্রি করতে গেলে বা কিনতে গেলে যে মিউটেশন ফিস লাগে সেটাও আমরা মুকুব করে দিয়েছি। এমনকি যে কোনো পরিবার তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে গেলে যে মিউটেশন ফিস দিতে হতো সেটাও আমরা ফ্রি করে দিয়েছি। এমনকি মনে রাখবেন কৃষকরা 5,000 টাকা করে পাচ্ছে কৃষি বন্ধু প্রোগ্রামে, শস্য বীমা সব টাকা আমার গভর্নমেন্ট দেয়, 1 পয়সাও কৃষকদের দিতে হয় না। তাছাড়াও কৃষক পরিবারে যদি কেউ 18 বছর থেকে 60 বছরের মধ্যে মারা যায় 2 লক্ষ টাকা করে পাবে, সেই টাকাটাও আমরা ইন্স্যুরেন্স করে দিচ্ছি আমরা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। এরকম প্রচুর কাজ আমরা করেছি, এরকম প্রচুর কাজ আমরা করেছি। মনে রাখবেন, মনে রাখবেন আমাদের নারেগায় কাজ করতো প্রায় 20 রকম ক্যাটাগরি আছে, 2,500 থেকে 7,500 টাকা তাদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে। আমার যারা ধরুন আশার মেয়েরা ছিল, আশার মেয়েরা প্রথমে পেত 700 টাকা দিল্লির টাকা, তারপরে টাকাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন কি করবো, আমি তখন ওদের 1,500 টাকা দিতে শুরু করলাম, কারণ ওরা কি করবে। তারপরে আবার 500 টাকা বাড়ালাম, 2,000, আবার 1,000 টাকা বেড়েছে, ঠিক তো, আশা কর্মীরা বেড়েছে তো 3,000, এবং তারপরেও তাদের গভর্নমেন্টের কাজ করানো হচ্ছে। आईसीडीएस এর মেয়েরা पहले क्या था 90 और 10, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देते थे, हमारा रुपया लेकर हमारा रुपया वापस देते थे, और 10% हम देते थे। अभी वो भी उठा दिया, अभी 60-40 कर दिया। तब भी आईसीडीएस बंद होने का बंदोबस्त किया था, বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম ছিল, কিন্তু আইসিডিএস এর মেয়েদের জন্য আমি কিছুদিন আগে 1,000 টাকা করে বাড়িয়ে দিয়েছি, এবং আইসিডিএস এর মেয়েদের যে টাকা লাগবে সেই টাকাটাও আমরা করে দিয়েছি। ধরুন গ্রামে গঞ্জে অনেক রুরাল ছেলে মেয়েরা আছে, ওই ডেলি ওয়েজে কাজ করতো, তাদের আমরা মাত্র 55 দিন ছিল, সেটাকেও 245 দিন করে দিয়েছি। প্যারা টিচারদের মাইনে বেরিয়ে গেছে। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, कैजुअल वर्कर कभी सोचा कोई जगह में नहीं है, ओनली बंगाल है, जिसमें और रोज चिंता करने का जरूरत नहीं है कब मेरे को नौकरी चला जाएगा। हमने क्या किया, उसका नौकरी का एज 60 इयर्स कर दिया, डॉक्टर का एज 65 कर दिया, वाइस चांसलर प्रोफेसर को भी 65 हो गया। ऐसे बहुत सारे स्कीम है जो हम लोगों ने कर चुका, আমরা করে দিয়েছি। বাকি কিছু এই মাথায় রাখবেন, প্রত্যেকটা কেস করা হয়েছে ধরে ধরে। এমনকি সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে পরিবহন কর্মীরা, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কাররা 60 বছর বয়স হয়ে গেলে 2 লক্ষ টাকা করে পায়, 1,500 টাকা করে পেনশন পায়। देयर आर सो मेनी स्कीम्स, एमनकी मजदूरेर बेटियाओ पाए, सब स्कीमें। तो इसी के लिए खाली देख के आपको करना है। हम 3 लाख लोगों को जमीन का पट्टा दे दिया, जमीन का पट्टा दिया। 30 लाख लोगों को बिना पैसा में फ्री में घर बना दिया। 100 দিনের কাজে অনেক লোক আছে কখনো কখনো 3 মাসের স্যালারি পায় না। এটা আমাদের দোষ নয়, এটা সেন্ট্রালের টাকাটা আসে আমাদের কাছে, তারা টাকাটা দিতে লেট করে, সেই জন্য প্রবলেমটা হয়। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদীর গভর্নমেন্ট চলে গেলে 100 দিনের কাজ আমরা 200 দিন করতে চাই, এবং আমরা মাইনেটা ডাবল করতে চাই। আমাদের ম্যানিফেস্টোতে আমরা বলেছি, ম্যানিফেস্টো আমরা বলেছি কথা। আমাদের যারা নৌজওয়ান আছে, ছাত্র যৌবন, তারা আমাদের বড় আছে, ঘরের মেয়েদের যেমন এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে,
সেরকম মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, না জাগিলে ভারত গড়ো না, এ ভারত জাগে না জাগে না। নজরুল ইসলাম বলতেন, সাম্যের গান গাই, আমার চোখে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাহি, বিশ্বে যা কিছু বন সৃষ্টি চিরকল্যাণ কর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। ভাই বন্ধু, সমানভাবে আমরা সাম্যবাদের পথে চলি, এই পথটা আমরা বিশ্বাস করি। তেমনি আমার ছাত্র যৌবন, তাদের নিজে পায়ে দাঁড় করাতে হবে। আমরা 40% এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি বাড়িয়েছি। আগামী দিন আমি চাই আমাদের বাংলার ছাত্র যৌবন যেন ভিক্ষে করে না খায়, তারা নিজে পায়ে দাঁড়াতে পারে, এইভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনের আগে একটা স্কিম আমরা নিয়েছি, এখনো চালু হয়নি। স্কিমটা নেওয়া হয়ে গেছে, 50,000 ছেলেমেয়েরা 1 লাখ টাকা করে পাবে, যারা নিজেরা নিজে পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করতে পারবে। এরকম অনেক কাজ আমরা করেছি। গতি ধারায় প্রায় 20-30 হাজার গাড়ি দেওয়া হয়েছে, কত বাস, কত ট্রেন, কত গাড়ি। মেয়েরা পর্যন্ত পিঙ্ক কার চালাচ্ছে এখন। এবং মেয়েরা বললে, এমনি ছেলেরা বললে আমরা 1 লাখ টাকা করে দিই কনসেশন, আর গভর্নমেন্ট থেকে টাকাটা পায় গতি ধারায়। আর ছেলেরা বললে, আর মেয়েরা বললে ওটাকে বাড়িয়ে 1.5 লাখ টাকা করে পাবে মেয়েরা নিজেরা গাড়ি চালাচ্ছে, নিজেরা নিজে পায়ে দাঁড়াচ্ছে। কত কাজ, কত কিছু করা হয়েছে। তাই আপনাদের কাছে আমি বলবো, ভাইও আর বহনों, চাहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, শিলিগুড়ি হোক, ফাঁসিডোয়াই হোক, নকশালবাড়ি হোক, হরিদ্বারে হোক, হরিদ্বারি হোক, বিধাননগরী হোক, আর চোপড়াই হোক, বাঘাযতীন হোক, আর কাওয়াখালী হোক, আর শিলিগুড়ি হোক, আর কালিম্পংই হোক, আর দার্জিলিং হোক, আর কার্শিয়াং হোক, আর মিরিকি হোক, আমরা চাই পার্মানেন্ট সলিউশন। ঝগড়া চলবে না, আর পাহাড় এবং সমুদ্রে কোনো ভাগাভাগি চলবে না। আমরা পাহাড়কে শান্ত করি, আর বিজেপি আগুন লাগায় দিল্লি থেকে বসে। আমরা পাহাড়কে শান্ত করি, সিপিএম আগুন লাগায় বিজেপিকে সাপোর্ট দেয়। আমরা পাহাড়কে শান্ত করি, कांग्रेस उन्हें सपोर्ट है, ऑक्सीजन है। एक दफे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, मोदी जी का साथ जो लड़ाई चल रहा है हिंदुस्तान भर और तृणमूल कांग्रेस का चल रहा है। बांग्लाई पद देखाबे, बांग्लाई जेताबे, बांग्लाई आगामी सरकार तैरी करबे। ताई मने राखबेन, सीपीएम के भोट दिए, कांग्रेस के भोट दिए আপনার ভোটটা নষ্ট করবেন না, অপোজিশন ভোটটা। সিপিএম কংগ্রেস বিজেপির সাথে পুরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সকালে করে সিপিএম কংগ্রেস, বিকেলে করে বিজেপি, আর রাত্রে ঘুমোতে যায় সিপিএম করতে গিয়ে। জগাই মাথায় গদাই তিনটেই হয়ে গেছে আজকে বাংলায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং। पंचायत इलेक्शनों আপনারা দেখেছেন। তাই सीपीएम के वोट नয়, सीपीएम को नहीं वोट देना है। वो तो 34 साल रह के देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस को भी नहीं देना है। आपको बहुत दिन दिया, माटीगाड़ में दिया, फांसीगांव में दिया, क्या कुछ कर पाया? काम सब हम करेंगे और वो वोट लेके भागेंगे, ये नहीं होगा। एक तरफ आपको विनती करने चाहूंगी कि हमारा पार्टी, हमारा उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस को जिताइए। हम पहाड़ में शांति कर देंगे। हम पहाड़ में शांति कर दिया, মনে রাখবেন পাহাড়ের সাথে সমুদ্রের ভালো সম্পর্ক তৈরি হোক। পাহাড়ের ভাই বোনেরাও আমাদের আছে। ये लोगों ने क्या किया था आपको पता नहीं है? बीजेपी क्या किया था? तोराई बॉर्ड्स में पहाड़ का साथ, तोराई बॉर्ड्स का, ट्राइबल का साथ गड़बड़ कर दिया था। कितना आग जला था, कितना गड़बड़ हुआ था। हम नहीं चाहते, हम चाहते सब मिलजुल कर एक साथ में रहे। अब पहाड़ का अगर गोरखा का आइडेंटिटी का बात है, हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हमारा आदिवासी का आइडेंटिटी का बात है, हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारा दलित का अगर आइडेंटिटी का बात है, हम क्यों नहीं करेंगे। हमारा एक माता बहन है, अगर उसको महिला एम्पावरमेंट करने का बात है, हम क्यों नहीं करेंगे। एहसास क्या है, हमारा नौजवान है, उसको देखना हमारा काम होता है, बहुत होता है हमारा मजदूर श्रमिक को देखना। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहेंगे कि ये दफे वोट आप मेहरबानी करके तृणमूल कांग्रेस से जोरापुर में दीजिए। आपको नॉर्थ बंगाल में हमको सर्किट बेंच भी बना दिया, बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटरिएट भी बना दिया। হয়েছে কি হয়নি বলুন। উত্তরকন্যা হয়েছে, উত্তরকন্যা হয়েছে আগে 70 বছরে হয়নি। কংগ্রেসে ছিল, সিপিএম ছিল, বিজেপিও ছিল, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারি করে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করুন উত্তরকন্যা থেকে শুরু করে আপনার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে শুরু করে
নরেন্দ্র মোদী এক পয়সাও দেয়নি, দালালি করছে। যত টাকা দিয়ে তৈরি করা জমি দিয়ে সবটাই তৃণমূল কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট করেছে, মামাটি মানুষের সরকার করেছে, যাতে উত্তরবঙ্গের মানুষ বিচার পায়। पहले नॉर्थ बेंगल में कोई नहीं आता इतना, हमको हर साल नॉर्थ बेंगल में आता है, हर महीना में आते हैं, इसी के लिए कि आपको नेग्लिजेंस हम नहीं देखने चाहते हैं, आप अच्छा रहे ये हम देखने चाहते हैं। और कितना आपको अच्छा दिन हुआ है, देखो फिर आने वाला दिन, अच्छा दिन आने वाला है मोदी का लिए, झूठा दिन नहीं। अच्छे दिन बोल के 15 लाख रुपया आपको पॉकेट में देंगे कहा था, अभी सब चला गया, सब लूट लिया। ये फिर आएंगे तो आपका बैंक में जो रुपया है सब चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आपका इज्जत, आपका अधिकार आपको रक्षा करना है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी आपको रक्षा करना है। आज 2 लोग 5 साल में आपको कुछ नहीं किया और जिंदगी भर कभी नहीं करेंगे। हम लोगों ने किया है, करके दिखाया है और भी करेंगे। আমরা করেছি, করে দেখাবো। তাই বলে बीजेपी के सुने रखो, बीजेपी लोगों का जब खाना नहीं मिलता है तुम 1 पैसा नहीं देता, तुम्हारा स्टेट में 2 रुपया केजी चाउल भी नहीं देते, ट्रीटमेंट भी बिना पैसा में नहीं देते। আমাদের এখানে আমরা সব করি। আর ইলেকশন আসলে বসন্তের কোকিলের মতো টাকার ভান্ডার নিয়ে এসছো, ওই টাকাটা কার? নোটবন্দির সময় যে টাকা লুট হয়েছিল সেই টাকাগুলো নিয়ে এখন ইলেকশনে খরচা করে বেড়াচ্ছে সবাই বলছে। আর অপোজিশনকে ভয় দেখানোর জন্য আজকে আমি আস্তে আস্তে দেখছিলাম চন্দ্রবাবু নাইডু বিক্ষোভে বসেছেন এবং কর্ণাটকের চিফ মিনিস্টারও বলছে আমাকে এবং আমার फैमिली एजेंसी দিয়ে হ্যারাস করা হচ্ছে। आई कंडेम, हम इसको कंडेम करते हैं। हर स्टेट को, अपोजिशन स्टेट को एक डिस्टर्ब करते हैं। वो क्या सोचते हैं, जो बोलेगा वही होगा। बंगाल में चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, उसका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करेगा। दिल्ली का क्या काम है? खाली विदेश जाना काम है, खाली घूमना काम है, खाली भाषण देना काम है, खाली आग जलाना काम है, खाली दंगा करने काम है, बड़ा बड़ा बात करते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी, आप वोट दीजिए मेहरबानी करके जोरापुर में तृणमूल कांग्रेस में, कि हमें एक दोस्ती बनाया पहाड़ से समतल का, ये सेतु बंधन, ये दोस्ती आपको रक्षा करना है। ये अमर सिंह है, पहाड़ का है, उसका बीवी बंगाली है, देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर रिश्ता बांधते हैं। ऐसे ऐसे तो हिंदुस्तान होता है, ऐसे ऐसे ही हमारा बांधा का परंपरा होता है। सब एक साथ में रहना, एक साथ में करा। আপনাদের বলবো বদলে দিন, দিল্লিতে বিজেপি সরকারটা পাল্টে দিন, বিজেপিকে ফিরিয়ে দিন, বদলে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, বদলে দিন, বিজেপিকে বিদায় দিন, বদলে দিন, দাঙ্গাবাজদের বিদায় দিন, বদলে দিন, নোটবন্দিকারীদের বিদায় দিন, বদলে দিন, মা বোনদের সম্মান দিন, পাল্টে দিন, বিজেপিকে হারিয়ে দিন। आपका सब मेहरबानी करके आपका कीमती वोट तृणमूल को दीजिए, जरा फूल को दीजिए। क्या देंगे तो ना, खाली कांग्रेस को बोल के हमको दे दीजिएगा। मैं आपको पास मांगती हूँ, आप दे दीजिए। ভিক্ষে নয় চাইছি দিন, তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে ভোট দিন, দার্জিলিং ফিরিয়ে দিন, দার্জিলিং জিতিয়ে দিন। মনে রাখবেন দার্জিলিং আমাদের গর্ব, দার্জিলিং আমাদের সকলের প্রাউড। সুতরাং দার্জিলিং এ আসুন, আমরা একেবারে পার্মানেন্ট শান্তি প্রতিষ্ঠা করি। ভালো থাকবেন। মাটিগাড়া, ফাঁসিগড়া, বিধাননগর, খড়িবাড়ি, চোপড়া, শিলিগুড়ি, বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু করে, সুপ্রা থেকে শুরু করে, আমার মিরিক থেকে শুরু করে, আমার কালিম্পং থেকে শুরু করে, আমার দার্জিলিং থেকে সকলে ভালো থাকবেন। এবার দার্জিলিং সিটে জিতবে কে? মা বোনেরা বলুন, এবার দার্জিলিং সিটে জিতবে কে? মা বোনেরা একটু जोर से करो ना। कौन जीतेगा अभी चुनाव में? कौन जीतेगा? जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। देखो हमारा माँ भाई स्लोगन नहीं देने से मेरे को दुख लगता है। आप लोग खाना भी पकाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, दोनों काम एक साथ में करते हैं। बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। আপনারা সবাই মিলে দয়া করে আপনার ভোটটা দেবেন। আর
और बीजेपी टाका पैसा अगर देता है तो मैं कुछ कहना चाहूंगी, वो तो आपका ही पैसा है, लेकिन वोट मत दो, वोट मत दो। वो 300 पैसे की नहीं दे रहा है। चुनाव का टाइम में पैसा बांटते हैं, उसको बोले तो हमारे पैसा है क्यों बांटते हैं? जनता का पैसा लेकर तुम जनता को जनता को तुम धोखा देता है। धोखा चाहिए, धोखा बनना चाहिए। মনে রাখবেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে গিয়েছিলেন আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মেলে না ভাই ভাই। মায়েরা আমার, আমি যাওয়ার আগে বলবো একটু উলুধ্বনি সম্পর্ধনি দিয়ে বলুন, ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাপসাদিকে শরণ্যেত্তম লোকে গৌরী নারায়ণ নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূত সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণ নমস্তুতে শরণাগত বিনাশ পরিত্রাণ পারণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণ নমস্তুতে। আমার পাহাড়ি ভাই বোনেরা বলুন, জয় महाकाल, जय दार्जिलिंग, जय गढ़वा, सबको एक साथ में मिलकर करना है। जय हिंद के আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা বলুন, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে ইনশাআল্লাহ खुदा हाफिज, इंशाल्लाह सबको अच्छा रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे ट्राइबल भाई बहन जो है, आप लोग चाहे जवाहर करके, आप चाहे सौदारी हो, चाहे और कोई, हमारा जो बहुत सारे करम पूजा होता है आपका चाय बगान में, कभी भादु होता है, कभी टुसु होता है, कभी करम पूजा होता है, सब एक साथ में मिलके, एक साथ में मिलके ट्राइबल का साथ में हमारा पूरा है, हम पूरा है। और धामसा मदर बजाओ, धामसा मदर बजाओ, धामसा मदर में हमारा जो बेटी लोग है, हमारे भाई लोग है, काम करते। हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन है, गॉड इज गुड एंड गॉड इज ग्रेट। पंजाबी भाई बहन है, उसको नियम कहेंगे सत श्री अकाल जी, नमस्ते, नमस्कार इंदा। पहाड़ी भाई बहन को लेके हम कहेंगे ভালছো রামছো। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুন্দর থাকুন, সবাই জবা ফুলছো ভোট দেবেন, এটা আপনাদের বলে বলি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় দার্জিলিং, জয় গোর্খা, জয় আদিবাসী, জয় তপশিলি, জয় সারণবাস, জয় ওবিসি, জয় সংখ্যালঘু, জয় খ্রিস্টান, জয় মা ভাই বোন। আমার নিউ প্রজন্ম জিন্দাবাদ, নিউ জেনারেশন জিন্দাবাদ, নিউ প্রজন্ম জিন্দাবাদ। নতুন ভোটারদের অভিনন্দন। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, আবার দেখা হবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, ইনশাআল্লাহ, জয় জওয়ান, সকল ভালো থাকুন। নমস্তে।